Welcome to all my wonderful learners. Today I am here with part 4, chapter atoms and molecules. So dear students, today our learning outcomes will be molecule, atomicity, ion. In ion, we will come to know about cation, anion and polyatomic ion. Dear students, before I will start, I want to say, please share videos with needy students, your friends, because sharing means caring. And that is one of the value. It is there in us. We can grow more and more unstoppable. So make it and grow in your life unstoppable. Let us come to our academic session. Yes, molecule. Previous session we have studied about atom. We have seen, dear students, atom is the smallest particle which we cannot divide further, right? एटम को हम तो आगे डिवाइड नहीं कर सकते. That we said it the smallest portion, but I have told that time that atom can be independent or it is dependent. That is not the fully independent entity. So here to make it more clear that molecule is that smallest particle of matter which is always independent, exists as an independent entity. Okay, molecules, it should be clear that it is that smallest particle of matter which is independent in itself. We can say a running example of molecule O2. Carbon dioxide gas, this molecule is this. ये इसका formula है. अब there is a differentiation. There is further parts of molecule, right? If I will say this more clear definition, that molecule is formed by combination of two or more than two atoms. दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, हमारे पास क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है. दिस इज मॉलिक्यूल. एज वी नो, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन हमारा कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है, and it is in the form of O2. So I was saying कि एटम जो है इंडिपेंडेंट भी होता है किसी में, कहीं पर नहीं होता है. That's clear? But now this is our molecule. This is the simplest molecule which is made up of one type of atoms in an element. Now dear friends, such molecules which are made up of one type of elements, right? एक तरह के एटम से मिलकर जो बने हैं, right? They are known as molecule of elements. Molecule of element. First category. Here the molecule is made up of one type of atoms. For example, in oxygen one atom combined giving us O2, right? This is a molecule. Ozone is also there. One oxygen molecule and one atomic oxygen. It combined and we will got O3, right? Here also it is made up of oxygen atom, hydrogen molecule, H plus H combined, ये plus H2. These all are same type of atoms are combining together. More example, P4.
This is molecule of phosphorus, right? You know this is the formula of phosphorus, symbol of phosphorus. Dear friends, the halogens, noble gases, He, helium, your argon, your neon, they are also in molecular form, but they are having only one atom in their molecule. कितने एटम होते हैं? One atom, right? So they are known as monoatomic gases, monoatomic molecules. They come under the category of elemental molecule, but it is surprising, right? They have only one atom in their molecule. Okay? So this is all about your molecule of elements. Now, molecules of another category is our molecule of compound, right? Molecule of compound. Now, as the name compound में आपको पता है compound is made up of two or more than two substances in a fixed ratio by mass. We have done in earlier session, right? Compound क्या है? दो या दो से ज्यादा आपके सब्सटेंस एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है. ओके, वी आर हैविंग एग्जांपल हियर. वाटर, this is a molecule, no doubt. This is a molecule, okay. Now, but it is known as molecule of a compound. इसका जो नेचर है कंपाउंड जैसा नेचर है. एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनता है, इट इज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स. ओके, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है. दूसरा है ऑक्सीजन, राइट? दूसरी जो एटम है ऑक्सीजन है. तो इन दोनों को कंबाइन करके, हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन करते हैं, एक ऑक्सीजन का, हमारे पास बन जाता है एक वाटर का मॉलिक्यूल, राइट? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, राइट? जिसमें दो डिफरेंट तरह के एटम कंबाइन करके हमें एक मॉलिक्यूल देते हैं. सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल, राइट? एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है. ओके, अमोनिया गैस NH3, दिस इज आल्सो ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड, राइट? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. वन नाइट्रोजन, तीन हाइड्रोजन, टोटल हो गए 4, टोटल हो गए 4. it is 3, here it is 2, right? It's clear? I think molecule जहाँ दो तरह के एटम कंबाइन हैं and one type and it is element. Okay, now dear friends, with this, when I am combining atoms, I am calculating atoms in a molecule, right? This is known as our concept atomicity. Atomicity is total number of atoms present in a molecule. एक मॉलिक्यूल में कितने टोटल एटम्स हैं, that is known as atomicity. Okay, let us calculate as given an example. Oxygen, 2 एटम. ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, atomicity is 2. वाटर H2O में कितने एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का. एटॉमिसिटी हो गई 3, राइट? As I have calculated for carbon dioxide, 1 carbon, 1 oxygen. Now it should be remembered this number in the subscription, right? जो कि सिंबल के you can say in the foot, उसके पाँव के पास, उसके फुट के पास
जो नंबर लिखा होता है that is indicating number of atom present in that particular compound of that element. ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, एक कार्बन का है. One number is not written, it is understood. 1 plus 2, 3 is the atomicity. कितने टोटल एटम हो गए? That is atomicity. Here 1 nitrogen, 3 hydrogen, right? 4. Okay. Now, dear friends, depending upon the number of atoms, they are known as monoatomic, right? जैसे हमारे पास ये सारे नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं. हीलियम, राइट? ये सारी एग्जांपल लिखे हैं. हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, दे आर नोन एज मोनोएटॉमिक, राइट? राइट? व्हेन एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी है 1. When there is atomicity is 2, they are known as diatomic, right? Atomicity है 2, diatomic. ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, 2 atomicity के एग्जांपल. And triatomic, when the atomicity is 3, example is your carbon dioxide molecule, your water molecule, right? Carbon dioxide, water. Tetraatomic, so when 4 is atomicity, इसका एग्जांपल है, एग्जांपल होगा P4, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, राइट? एक ऑक्टाटॉमिक का लिख लेते हैं, ऑक्टाटॉमिक, जिसमें 8 is the atomicity. Example S8, sulfur molecule is of having 8 atoms together, right? So this is about the atomicity. Okay. Now, next our concept is for today iron. It's very interesting and very important, right? Concept of iron. देखिए एटम की दूसरी जो चेन स्टेट है, दैट इज योर मॉलिक्यूल हो गया, ओके, कंपाउंड हो गया, बट एटम से बनता है आयन. एटम से बनता है आयन, राइट? आयन, कैसे? आयन इज very reactive species. See, now it is formed when your atom either lose electron or gain electron. So gain or loss of electrons from the atom convert into another state, that is known as ion. And it is a charged species. कैसी स्पीसीज है? जिसपे चार्ज है, ओके, चार्ज है. अब चार्ज कैसे होते हैं? हमारे पास 2 तरह के चार्जेस होते हैं. कौन से? यस, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, द स्पीसीज ऑफ आयन which carry positive charge, they are known as cation. They are known as cation, right? And cation is formed by loss of electron. It is formed by the loss of electron. जब आपका एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो चार स्पीसीज में कन्वर्ट होता है, उसे बोलते हैं कैटायन. राइट? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास सोडियम मेटल है. कैसे बनता है सोडियम का कैटायन? देखिए, ये हमारे पास सोडियम मेटल है. आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, राइट? इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सो इट विल गो. अब ये बात ये भी आती है कि व्हाई द आयंस आर फॉर्म. तो याद रखेंगे, हम आयंस क्यों बनाते हैं? देखिए, आयंस बनाने जो जब भी बनते हैं, सो व्हाई फर्स्ट
atom convert into ion? Question arise. I think you are thinking why it is there. So this ion is formed to achieve noble gas behavior. अभी हमने डिस्कस किया था हीलियम है, आपकी अगर नियोन है, ओके, तो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. बट हियर आई विल टेल यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट आयन दैट जो हमारे पास एक एसिड है, इनके पास होते हैं 2 एंड इसमें है 10. तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ऑक्टेट. ओके, they want to become just like the noble gases. और नोबल गैसेज की तरह अचीव करने के लिए उनको ऐसा बिहेवियर, देयर आउटर मोस्ट शेल शुड बी कंप्लीट. इट शुड बी डुप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट उसके पास हो. तो इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे जो एलिमेंट के जो एटम्स हैं, आइदर दे लॉस इलेक्ट्रॉन, ये जो नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर, यू नो दिस इज एटॉमिक नंबर 11 फॉर सोडियम, राइट. तो ये जो है इनका बैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल में आती है 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन. सो विच इज द इजी वे फॉर देम, या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले या गेन कर ले, वो कर सकते हैं. दे कैन डू दिस, दे कैन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, राइट. तो विच इज easily possible for them, they go on that way. So you will see metals, they always lost electron, they are known as electropositive, and non-metals they lost again electron, they are known as electronegative. Okay, so here अब इसके पास बात क्लियर हो गई हमारी कि वो इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करेगा या गेन करेगा, so that they became just like the noble gases in which they have 2 electron in valence shell, right, or 8 electron. Got it? All right, let us see now you will understand very nicely and happily. Okay, with big smile in your mouth, right, on your face, let us go. सोडियम हमारे पास क्या करेगा, वो कैसे आएगा, वो नोबल गैस की तरह ऑक्टेट कंप्लीट किस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, राइट. व्हाई नेगेटिव पॉजिटिव साइन, बिकॉज हमने ये भी डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है. प्रोटॉन इज योर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज. पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे. अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इट्स लॉस्ट. अब इसके पास प्रोटॉन रह गए लार्ज अमाउंट में, इसीलिए सेम चार्ज डेवलप है, राइट. तो ये है कैटायन, इस तरह से कैटायन बनता है. ओके, हमारे पास और भी एग्जांपल है, आगे डिस्कस लेकर. ओके, एनायन कैसे बनता है, लेट अस सी नाउ. एनायन कैसे बनेगा, let us take a chloride ion कैसे बनता है, Cl negative. This is how it come in existence. हमारे पास है क्लोरीन, इसका जो जन्म दाता है कौन सा है, क्लोरीन से बनता है, क्लोरीन एलिमेंट. ऑलराइट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर वेरी गुड 17 एटॉमिक नंबर, राइट. So you know very well how to remember the atomic number, right, symbols. Alright, write its electronic configuration. कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, 2 8 8 18. दिस इज योर मैजिक नंबर, राइट. याद रख लीजिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, फॉर दिस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन, कमिंग सेक्शन. ओके, अभी आपको सब नंबर याद रखने हैं. ऑलराइट, अब डिस्ट्रीब्यूट करो. पहले शेल में आ जाएंगे 2, राइट, 2 8 एंड 7. अब देखिए ध्यान से, इस एलिमेंट को कितने चाहिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे. तो गेन करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन का आना बड़ा मुश्किल था, राइट. सो व्हाट इट विल डू, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड इसके पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन 17 रहते हैं, इसलिए एक नेगेटिव बढ़ गया, तो इसका वो चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा.
राइट, दिस इज योर एनायन, राइट। ऐसे ही सारे एनायन बनते हैं, ऑक्साइड, राइट, फ्लोरीन। सो दिस इज योर एंड before discuss more examples in another way, I want to discuss now the polyatomic ion. What is polyatomic ion? My dear friends, poly means many, many, atomic means atom. ऐसा चार स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा एटम है, राइट। ये जो मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर चार तो है लेकिन एक एटम है, इसमें भी एक एटम है। अगर मैं बात करता हूँ O2 ऑक्साइड, इसमें भी वन एटम है। सो व्हेन वी these are monoatomic ions, you can see. Now polyatomic means, poly means many, उसका मतलब क्या है, उसमें एक से ज्यादा एटम पड़े हैं आपके चार्ज स्पीसीज में। ओके, एग्जांपल इज हियर अमोनियम आयन, it is your sulfate ion. Okay, so this is your ammonium ion, this is your sulfate ion. लिख लीजिए अमोनियम, राइट। अमोनियम में कितने एटम हैं? एक है नाइट्रोजन का, दो है फोर है हाइड्रोजन के, टोटल हो गए फाइव इसमें एटम्स हैं, चार स्पीसीज हैं। तो इट इज ए पॉलीएटॉमिक कैटायन, पॉलीएटॉमिक कैटायन। ये है सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट सिंबल है, फॉर्मूला SO4 2 नेगेटिव, एक सल्फर का एटम, राइट। फोर है हमारे पास ऑक्सीजन के एटम। डियर फ्रेंड्स, नाउ हाउ मेनी टोटल? 5। एक से ज्यादा एटम है, सो दे आर नोन एज पॉलीएटॉमिक एंड वेरी सिंपल, more than one atom, right, which can present in a charged species, that is known as polyatomic ion. I think concept is clear. More example which is you have to learn, right, for NCERT. So you can see in this image. Dear students, in this table we can see the different type of ions are there, right? So first of all, we have given here the ions sodium, potassium, silver, copper, right? These are monoatomic ions. Cation है, positively charged ion है, and these are monoatomic. यहाँ कॉपर के आयन में बीच में ब्रैकेट के साथ रोमन लेटर में 1 लिखा हुआ है, वो उसकी वैलेंसी की बताता है, ठीक है। जो भी चार्ज आयन पे होता है दैट इज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी क्या है हम कमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। जनरली इफ आई विल टेल यू, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और आयन के केस में जितना उसके ऊपर चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। सेकंड हमारे पास कैटायन मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, राइट। देखिए चार्ज जितना भी डेवलप होता है वो उनके सुपर सब्सक्रिप्शन में लिखते हैं हम। सो हियर इट इज देयर हैविंग मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, दे आर डाइवैलेंट, ओके, जिसकी वैलेंसी 2 है। देन एल्यूमिनियम, देन योर फेरिक, जो जिसमें 2 वैलेंसी है उसे फेरस बोलते हैं आयरन के केस में, राइट। वेयर वैलेंसी इज 3, स्टार मार्क में जो लिखा हुआ है इट इज नोन एज फेरिक, फेरिक, राइट। एंड देन योर हाइड्रोजन, हाइड्राइड, ओके। देखो हाइड्रोजन तक ठीक है, ये सारे कैटायन हैं। कैटायन का नाम चेंज नहीं होता है, मीन जब हम जो मेटल का नाम है वही आपके कैटायन का नाम होता है, ठीक है। और जितने भी हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज आयन हैं तो हमारे पास वहाँ पर उनके नाम में चेंज आ जाता है। जैसे अब हाइड्राइड हो गया, नेगेटिव चार्ज है उस पर, नेगेटिव हो गया तो अब हाइड्रोजन नहीं बोलूँगा मैं, हाइड्रोजन मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज है, आई विल से हाइड्राइड, राइट। सोडियम हाइड्राइड जैसे हो गया। फिर आ गया क्लोराइड, पहले वो क्लोरीन था अब क्लोराइड हो गया, ब्रोमीन से ब्रोमाइड हो गया, आयोडीन से आयोडाइड हो गया, ऑक्सीजन से ऑक्साइड हो गया, राइट, सल्फर से सल्फाइड हो गया। तो इसमें नाम में चेंज आ जाता है। ये सारे हमारे पास एनाइन
राइट, सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड। इसमें अब वैलेंसी 3 है, 3 नेगेटिव, बट हैं मोनो एटॉमिक एनायन। आगे चलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स में, राइट। यहाँ पर भी पहले आता है अमोनियम, NH4 पॉजिटिव, चार्ज उसमें एक ही है, +1, राइट, बट इसमें 5 एटम्स हैं, सो पॉलीएटॉमिक आयन। हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव। नाइट्रेट, देखो 8 आ गया लास्ट में, NO3 नेगेटिव, राइट। एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिंपल का बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, HCO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर आ गया कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव, राइट। जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप याद रखेंगे, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, अमोनियम, ऑक्साइड, ओके, देन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ferrous, then copper, aluminium. These are very occasionally, means which are generally asked ions. So you have to remember, slowly and slowly all others ion will be in your pocket, right? You just go on and things one day become your. So this is very basic things, dear students. You have to learn it if you want to very strong in chemistry. So please make it your property, learn them again and again. That's it. Let us move the another way. This image. All right. So I think concepts of this academic session is all in your pocket. Now you are here last but not least, this thought which will help you to move with rocket speed to achieve your target. What is that? God helps those who help themselves. You have listened this, but now time is there to imbibe, right, in your blood. भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है. We have to take initiation. If you will take one step, the God, that positive power will open the ways for you. Right? Ignition temperature चाहिए होता है किसी चीज को burn करने के लिए. After ignition temperature it burns continuously. It is that ignition temperature is required you guys convert into a supreme product. So put some input and doors of success are open for you. Go ahead, success is waiting for you. Champions, convert yourself into ions, cations, so that you can grow more. You can make more combination, right? Move ahead. That's it for the day. Wish you all the very best. Stay awesome, stay productive, stay creative,